Hello, everybody. A very warm good morning to all of you. My name is Rahul, and I'm your faculty of RBI Grade B at Olive Board Learning Center, Pune. Here I come up with the analysis of Phase 2 examination that took place yesterday of RBI Grade B. Here we will be discussing about finance and management entirely, that is objective as well as descriptive part. Here I would like to tell you that this time RBI Grade B gave equal weightage to finance as well as management. So they asked 26 marks of finance in objective and 24 marks of management in the same manner, that is in objective. So as an aspirant, you need to excel in both of these subjects to excel and to cut off your competition. So yeah, so let's begin with our next slide. So, what we will be discussing today entirely about objective, descriptive, as well as how was the difficulty of the examination. So, I have jotted down all of the finance questions first, then we will move on to the management part. So, there was one passage from financial inclusion where they have asked about Atal Pension Yojana, Jeevan Jyoti Bima Yojana, Suraksha Bima Yojana, and about one of the scheme that has been launched by PM Modi on on 15th of August 2014. So these were all easy questions, and this has been asked for 10 marks. This was a nutcracker. If you know, and if you don't know, then it would be difficult for you to score 35 plus or 36 plus in the finance and management part objective. So yeah, so let's begin with Atal Pension Yojana. So maximum pension amount कितना होता है? So maximum pension amount पे क्वेश्चन आया था. So that is 5,000 rupees. जीवन ज्योति बीमा योजना एलिजिबिलिटी क्या है? क्या है? 18 to 50 years. लाइफ कवर कितना दिया जाता है जीवन ज्योति बीमा योजना में? कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपीस का. सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम क्या है? 20 रुपीज एक्सक्लूडिंग टैक्सेस. और ये स्कीम कौन सी है जो 15 अगस्त में नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी इन द ईयर 2014, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना. ये इतने आसान क्वेश्चन पूछे थे जिससे आपको 10 मार्क मिलने वाले थे. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, और एक लंबा सा पैराग्राफ दिया था पर उसमें पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग पूछ लिया था. पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग. ये भी इतना इजी था कि आपको 10 मार्क आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते थे. ठीक है. आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया था इन द ईयर 2021. ठीक है. तो एक पैराग्राफ दे दिया हुआ था, तो आपको वो बताना था कि वो डिस्कशन पेपर किसके रिगार्डिंग है. नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी के लिए रिलीज किया था, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रिलीज किया था, या रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिलीज किया था. सो आप वो पैराग्राफ पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि वो जो डिस्कशन पेपर रिलीज किया था दैट वाज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो इसका फर्स्ट आंसर था कॉर्पोरेट गवर्नेंस. हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल बी द चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बैंक? कौन रहता है चेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? तो इसका करेक्ट आंसर इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. थर्ड, who heads the risk management committee? Independent directors, non-executive director, executive director, who? So the correct answer for this is independent director. Next is chairman of risk management committee should have experience in which domain? Obviously he is the chairman of risk management, so he should have some kind of knowledge, or he should have some kind of experience in the risk management domain itself. So the correct answer for this is risk management. Next we move on to about the quorum. What is the quorum requirement for the board meetings? So that is 1/3 of the total strength of directors or 3 directors, whichever is higher. So this was all about the corporate governance in banking part. So this was also been asked for 10 marks, and this was also easy, or let's say on a moderate side, because there are some points that you need to mug up. So I'll rate this as a moderate one. This 5 questions would be a
a moderate one. Next, we move on to one markers on finance. So NAFED has been recently introduced in the syllabus of RBI Grade B. So we were quite expecting this question from them. So they have asked about the NAFED. NAFED has been established as Principal Development Financial Institution. So what, for what purpose the NAFED was formed? That you should have answered correctly. So the answer for this is infrastructure financing. Next is, it was a very easy question regarding to accounts, and only one question has been asked from accounts in your yesterday's paper. So what was the return on assets? So there was already given data on PAT, that is profit after tax, and the total assets were also given. You just have to do PAT by total assets into 100, and that is approximately equal to 50%. Okay, that is exactly equal to 50%, and that is your return on asset. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. मैं पूछ लिया था कि अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से है, फोरफेटिंग है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है. ये एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं थे, बट फोरफेटिंग एक ऑप्शन था आपका, और वही आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे. ठीक है, ये अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पूछा गया था. नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था अबाउट द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. ये बार बार हम रेमिटेंस स्कीम देखते हैं, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है इन द ईयर 2004. तो यहाँ पे पूछा गया था जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं इन एन फाइनेंशियल ईयर अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस एलआरएस स्कीम. So the correct answer for this is 2,50,000 US dollars. Next is, which of the following is an non-tax revenue receipts? So this is very basic question from the budget. You should be aware of what is meant by tax revenues, what is meant by non-tax revenue receipts, what is meant by capital receipts, what is meant by debt creating receipts. If you have some kind of basic idea regarding these topics, then you could uh, easily score a mark in the fifth question. So the correct answer for this was interest income. There was next question on bills of exchange. Example has been given, a case study has been given, and you needed to identify if this was a promissory note or a bill of exchange, or there was some absurd options also given. So the correct answer for this was bills of exchange. So this was all about the finance part. Now let's move on to the management objectives. So there was a very easy question regarding the French and Ravens. You need to answer about what are the French and Ravens five powers. So there were five powers given in the options regarding legitimate power, expert power, referent power, coercive power, and there was one more power that has been given in the option. So the correct answer was all these five powers. Next, we move on to what is the example of non-verbal communication. So they have mentioned body gestures and oculesics, body gestures and eye contact. So this was the answer for this second question. Now we move on to next question. What is the communication barrier called when sender can't express what he wants to express because of limited vocabulary? So this kind of barrier is known as semantic barrier. So this was asked from communication and general management. This was 2 markers question and which comprises of 6 marks. Next we move on to the topic of leadership and management. So on motivation, the questions was purely based on content based theories. So the first question on leadership was, Kurt Lewin has mentioned which three kinds of leadership? So it was a very easy one.
he explicitly mentioned about autocratic, democratic and laissez-faire leadership. All these options has been mentioned in your examination. Next we move on to which among the following are situational leadership theories, or that is also known as contingency theory. So the option for this was, the correct answer for this was Robert House path goal theory. And there was one more theory, I guess that was a Hershey Blanchard theory. I'm not sure about the option, but the one option was Robert Path House goal theory. Robert House theory. So that should be the correct answer for this second one. Now we move on to next question about मैकक्लेलैंड. मैकक्लेलैंड ने कितने नीड्स के बारे में बोला है उनके थ्योरी में? थ्योरी ऑफ नीड्स में कितने नीड्स के बारे में उन्होंने स्ट्रेस किया है? दैट आर 3 नीड्स. नेक्स्ट इज हाईएस्ट लेवल ऑन मैस्लोव थ्योरी. क्या होता है आपका? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन ऑन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. ये इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, फिफ्थ थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लिया था, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इसका आंसर करेक्ट करके आ सकते थे. सो ये आपको लीडरशिप और मोटिवेशन पे भी 10 मार्क का पूछा गया है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सम 1 मार्कर्स फ्रॉम मैनेजमेंट. सो पूछ लिया था ओशियन मॉडल पे क्वेश्चन आया था कि यार ऐसा कौन सा लीडरशिप ट्रेट है जो लीडर है जो डिसिप्लिन्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और डिपेंडेबल भी होता है एज पर ओशियन मॉडल. तो आपका आंसर होना चाहिए था कंसाइटियसनेस. क्या आंसर है इसका करेक्ट? कंसाइटियसनेस. नेक्स्ट आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन था. what is it called when there is a difference between true emotions and exposed emotions? So the correct answer for this was emotional dissonance. So the correct answer for this was emotional dissonance. Next is there was a 2 questions on ethics. First one was universal principle which displaced concerns for individuals. What is that one universal principle which concerns about the individuals? And the correct answer for this is caring. Next we move on to, again it is related to ethics only, but somewhat related to ethical theories. So there you needed to identify, is this theory was deontology, is this theory was teleology, and there was some absurd options given. So आपको यहाँ पे कीवर्ड पे फोकस करना था कि यहाँ पे गुड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बोला गया था. सो अगर गुड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बोला गया है तो इट इज क्लियरली अ टेलियोलॉजिकल थ्योरी. इट इज क्लियरली अ टेलियोलॉजिकल थ्योरी. सो मैंने यहाँ पे आपको 46 मार्क्स के क्वेश्चंस कंपाइल करके दिए हुए हैं. मुझे 4 मार्क के क्वेश्चंस नहीं मिले तो मैंने उसको जानबूझ के यहाँ पे ऐड नहीं किया है. ठीक है, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट क्वेश्चंस, बट मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने दिए हैं, बट मैं फिर भी उसके लिए श्योर नहीं था तो मैंने वो ऐड नहीं किया है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया था फाइनेंस को और मैनेजमेंट को इन एन ऑब्जेक्टिव सेक्शन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. पहले हम फाइनेंस का डिस्क्रिप्टिव देखते हैं. यहाँ पे इन्होंने इस बार वर्ड लिमिट मेंशन कर दिया था कि आपको 400 to 420 वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ONDC, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. ये आप देखोगे, आप अगर न्यूज फॉलो कर रहे हो या कोई कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर कंपाइलेशन भी पढ़ रहे हो तो आपको ONDC का नाम बार बार आते हुए दिखता था. ठीक है, अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो आप इसमें आराम से 400 वर्ड्स तो लिख के आ सकते थे. तो इतना आसान सवाल आपको ONDC पे पूछा गया था. ठीक है, नेक्स्ट इज UPI सैंक्शन लिमिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. ये भी 400 से 420 वर्ड्स में लिखना था. यहाँ पे बेसिकली वो क्या पूछना चाह रहे थे कि यार UPI के थ्रू आप कितना ट्रांजैक्शंस कर सकते हो दिन में, कितना RBI ने परमिट किया है आपको. सेकेंडरी मार्केट में पता है आप कितना कर सकते हो, IPO में आप कितना कर सकते हो, आप 5 लाख का दिन का पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ UPI. ठीक है,
आप अगर पर्सन टू पर्सन कर रहे हो तो आप दिन में कितना कर सकते हो, 2 lakhs का कर सकते हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप यूपीआई सैंक्शन लिमिट्स के बारे में आप आराम से लिख सकते थे। बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा का खेल था और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम थी। ये स्कीम क्यों लाई थी, कितने चार्जेस थे ये स्कीम के, रिटेल गिल्ट अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट किसके पास खोलना पड़ता है, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शन जो कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर दिस रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू होने वाले हैं। ये आपको अगर 4-5 चीजें भी पता थी ये स्कीम के बारे में, तो आप आराम से इस पे 600 वर्ड्स का आंसर लिख सकते थे। So overall, I would say finance descriptive was easy, on a very easy lines. Next we move on to management descriptive. A very easy question कि कोड ऑफ कंडक्ट कैसे बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। सो इट वाज a very easy 10 marker question where you have to write about 400 to 420 words. About second question, I would rate this 14 principles given by Henry Fayol a little moderate or a difficult, I could say that, because 14 के 14 principles वो एग्जाम के प्रेशर में याद रहना, एग्जाम के प्रेशर में याद आना वुड बी डिफिकल्ट टास्क। तो इसलिए मैं सेकेंड क्वेश्चन को टफ बोलूंगा। तो मेरा राय ये था कि आपको बेसिकली इसको छोड़ देना था, 14th प्रिंसिपल्स वाले जो सेकेंड क्वेश्चन को आइडियली आपको इसको छोड़ देना था, क्योंकि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो काफी इजियर लाइंस पे था। आपको ओशियन मॉडल ऑफ पर्सनालिटी बताना था 600 वर्ड्स में, ठीक है। ओपननेस आपको बताना था, कंसाइटियसनेस क्या होता है, एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है, एग्रीएबलनेस क्या होता है, न्यूरोटिसिज्म क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो अगर आप इस पे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा भी एग्जाम्पल लिखते थे तो आपका यहाँ पे आराम से 600 वर्ड का आंसर बन जाता था। सो अ मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन ईजी विथ रिस्पेक्ट टू एन डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। बस ये सेकेंड क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट के लेवल पे था। So this was all about the management and finance. Overall, I would rate this paper a moderate one. If you could score like 35 plus, 33 to 35 plus, then that's a good score. That's definitely a good score. And you can always prepare for the interview, because interview is a make and break with respect to RBI grade B, because we have seen so many students who scores as low as 2 marks and as high as 73 to 74 marks in an interview of RBI grade B. So those of you have given the mains examination, I think it's the right time for all of you to read the newspaper as well as take the take the mentorship for to ace the RBI grade B interview. This is a very crucial step of Reserve Bank of India grade B officer examination. This you can't skip it at all. So next, difficulty was moderate. नेक्स्ट, आपको अगले साल अगर 2024 में अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए, आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर 2024 में बनना है, तो आपको उसके लिए कौन सी चीज करनी पड़ेगी। मैं क्लियरली आपको बोल देता हूं कि आप अभी फिलहाल 2 महीना आप फाइनेंस मैनेजमेंट और ईएसआई पे ध्यान मत दीजिए। आप ट्राई करिए कि आप पहले फेज वन के बेसिक्स कैसे क्लियर कर सकते हो। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप उसको 2 या 2.5 महीने में उसके बेसिक्स क्लियर करो और फेज वन तक आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपने इतना भी कर लिया और आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बनाना है एग्जामिनेशन में और कौन सा क्वेश्चन मुझे एग्जाम में छोड़ना है, आपने अगर इतनी भी चीज अगर अच्छे से कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता है फेज वन निकालने के लिए आरबीआई ग्रेड बी का, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ फेज वन, और लेट्स कॉल इट मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, दैट इज जनरल अवेयरनेस।
इस बार हमने देखा कि बहुत अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे जनरल अवेयरनेस पूछा था, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अगर आप रोज कुछ ना कुछ रीडिंग कर रहे हो, पीआईबीज पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी है, तो आप फिर भी आराम से ये एग्जाम को क्लियर करके लेके जा सकते थे इसका फेज 1। क्योंकि आपको ये समझना है कि आपको आपके कंपटीशन को ही बीट करना था जनरल अवेयरनेस में, ना कि उसमें आपको टॉप करना था। उसमें इस बार 50 भी लाना वुड बी लिटरली इम्पॉसिबल। ठीक है, अभी 3-4 दिन में स्कोर कार्ड आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसने भी क्लियर किया है उसका स्कोर कितना रहा होगा जनरल अवेयरनेस के अंदर। 45 भी लाना इस बार वेरी डिफिकल्ट। इस बार 45 भी लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है फेज 1 के अंदर। ठीक है, फेज 1 के जीए के अंदर, दैट यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड। तो जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपकी आप रीडिंग हैबिट्स बढ़ाइए, ताकि इसका फायदा आपको डिस्क्रिप्टिव में भी मिले और आपके फेज 1 के जीए में भी मिले। ठीक है, वैसे हम हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जीए के क्लासेस हमारे होते हैं एवरी वीकेंड्स, और बाकी आरबीआई ग्रेड बी के सेशंस होते हैं हमारे सैटरडे एंड संडे। और जो फेज 1 की जो पूरी तैयारी होती है क्यूआरई की, वो मंडे से लेके फ्राइडे तक होते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हो, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अभी आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। पहले तो आप क्यूआरई पे फोकस करो 2 महीना, उसके बाद आप फेज 2 के लिए जोरों शोरों से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैंने बहुत एस्पिरेंट्स देखे जो बहुत डरते हैं। आपने ये पेपर को एनालाइज किया, अभी हमने ये पेपर अभी देखा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट के लिए डिस्क्रिप्टिव बाधा बन सकता है उसके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि अगर कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप आराम से डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो एग्जामिनेशन में और उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। होल एंड सोल whole and sole reason to clear this RBI grade B examination is your conceptual understanding। अगर conceptual understanding है तो आप आराम से अगले बार RBI grade B 2024 बन सकते हो। So we have questions to all your doubts। जिसके लिए हम गाइडेंस देते हैं लोकेश शर्मा सर का, वो आपको क्वांट पढ़ाते हैं, और रीजनिंग के लिए हमारे पास एक्सीलेंट फैकल्टी है जैन सर, और इंग्लिश के लिए है आपके एक्सीलेंट फैकल्टी वरुण सर। ठीक है, तो आप इनके गाइडेंस में आप फेज 1 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। टॉप नॉच एग्जाम लेवल कंटेंट की हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। नेक्स्ट इज फेज टू का पूरा मैं देखता हूँ। आपको मेरे तरफ से ईएसआई पढ़ाया जाएगा, फाइनेंस पढ़ाया जाएगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ाया जाएगा और मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपको एग्जैक्ट सटीक मेंटोरशिप दी जाएगी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ऑफलाइन लर्निंग सेंटर में पढ़ते हैं, जो ऑलिव बोर्ड में पढ़ते हैं पुणे में, तो मैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहता हूँ और उनको हमेशा मेंटोरशिप देता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है तो। बट आपको यही हमेशा आपके दिमाग में एक चीज ध्यान में रखनी है कि फेज 1 इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बट विद द राइट स्ट्रैटेजी यू कैन क्रैक इट इजीली। ठीक है, सो फेज 1 इज द गेम चेंजर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फेज 1 में असली कंपटीशन है। 3-3.5 लाख लोग बैठ रहे हैं, उसमें से 3000 लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है फेज 2 में, तो आपको वो स्टार्टिंग के 3000 लोगों में आना है फॉर दी फेज 2। ये आपको ध्यान रखना है। अगर फेज 2 हो गया, फेज 1 हो गया, तो फेज 2 में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। जस्ट ट्रस्ट माय वर्ड्स, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन फर्स्ट फेज 1। आप 2 महीना अच्छे से तैयारी करो, 2 महीने में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर करो, उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में रखो, और उसके बाद जब हम फेज 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब खुद ब खुद आप में ही कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स अदर देन दिस, एंड इफ यू वांट टू एनरोल फॉर आवर banking related examination or SSC or for any regulatory body examination,
you can contact this number, that is 7720060014, and you would be getting the right advice from the right mentors. Thank you so much. And we have our branch located at Pune, and this is our first Olive Board Learning Center, first offline learning center that is based out of India. So this is the first offline center that you should remember. And if you have any kind of queries, do contact us on this number and you will get full guidance on how to prepare and what are the steps that you need to avoid in order to clear this examination in the very first year. Thank you so much, and be curious, be aware, and be better. And here I am done with the analysis of phase 2. Thank you so much. Do let me know if you like the session. Thank you so much.